وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنیخیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ سکھ ڈرائیور سویلین کپڑوں میں تھا، ظاہر ہے کہ وہ پولیس کا آدمی ہی ہوگا۔ یہ بس تھانے سے حوالاتیوں کو عدالت میں لے جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ میں بھاگ جانا چاہتا تھا مگر بھاگنے کا مقام نہیں تھا۔ سکھ ڈرائیور نے 2-3 بار ہارن دے کر اونچی آواز میں کہا، آ جاؤ باؤ، اندر آ جاؤ، کہاں جانا ہے؟ اس نے اپنے ساتھ والی کھڑکی کھول دی۔ میں اندر جا کر بیٹھ گیا، بس آگے چل پڑی۔ سکھ ڈرائیور ہنسمکھ قسم کا آدمی تھا، کہنے لگا، باؤ تم شاید پولیس کی گاڑی دیکھ کر ڈر گئے ہو۔ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، یہ گاڑی ضرور پولیس کی ہے مگر میں پولیس کا آدمی نہیں۔ اس نے بتایا کہ امرتسر میں اس کا موٹر ورک شاپ ہے۔ یہ گاڑی جالندھر سٹی پولیس کی ہے اور رنگ کے لیے اس کے پاس امرتسر آئی ہوئی تھی اور اب وہ اسے واپس جالندھر لے جا رہا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کہاں جاؤ گے تم؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کیا کام کرتے ہو؟ ایک ہی سانس میں اس نے مجھ سے 3 سوال پوچھ لیے۔ میں نے اس قسم کے سوالوں کے جواب پہلے ہی سوچ رکھے تھے۔ میں نے اسے اپنا فرضی ہندوانہ نام بتایا اور کہا کہ میں امرتسر کے کالج میں پڑھتا ہوں اور جالندھر اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ فکر کی کوئی گل ہی نہیں ہے، سمجھو جالندھر پہنچے کہ پہنچے۔ میں جی ٹی روڈ پر 60 میل سے کم گاڑی چلاتا ہی نہیں، سکھ ڈرائیور نے کہا۔ سامنے ایک گائے آ گئی۔ سکھ ڈرائیور نے اسے گالی دی اور بریک لگا کر ہارن پر ہارن دینے لگا۔ وہ گائے کو گالیاں دیتا کچے پر سے گاڑی نکال کر آگے لے گیا۔ جالندھر وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ مجھے تب پتہ چلا کہ میں امرتسر سے پیدل چلتے ہوئے 10-15 میل کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی جالندھر شہر کی آبادی شروع ہو گئی۔ ہر طرف سکھ ہی سکھ نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے میں نے اتنے سکھ کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جالندھر شہر بھی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ بس پولیس اسٹیشن جائے گی۔ میں نے سکھ ڈرائیور سے ایک جگہ رکنے کے لیے کہا، بس سردار جی میں یہیں اتروں گا۔ میں نے سردار جی کا شکریہ ادا کیا اور بس سے اتر گیا۔ جہاں سے مجھے ریلوے اسٹیشن جانا تھا، میں نے ایک سائیکل رکشہ دیکھا جو خالی تھا۔ میں اس میں بیٹھ گیا اور اسے ریلوے اسٹیشن چلنے کو کہا۔ سائیکل رکشے والا بوڑھا سکھ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ رکشہ چلاتا ایک طرف کو چل پڑا۔ کئی بازار آئے اور گزر گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سردار جی دلی جانے والی گاڑی کس وقت چلتی ہے؟ رکشے والے سکھ نے ہامتے ہوئے کہا، پتہ نہیں جی، اسٹیشن پر جا کر پتہ کر لیں۔ جالندھر ریلوے اسٹیشن کی ایک طرف رکشہ رک گیا۔ یہاں کافی لوگ تھے۔ میں اگرچہ امرتسر سے کافی دور نکل آیا تھا مگر میں ابھی تک پنجاب میں تھا اور اپنے آپ کو خطرے سے محفوظ نہیں سمجھ رہا تھا، اس لیے بڑی احتیاط سے کام لیا۔ ٹکٹ میری جیب میں تھا۔ ایک قلی سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ دلی جانے والی ٹرین شام کو 6 بجے آئے گی۔ اس وقت ابھی دن کا 1 بھی نہیں بجا تھا۔ اتنا وقت گزارنا میرے لیے ایک مسئلہ تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے اسٹیشن کے سامنے ایک دکان میں بیٹھ کر دال روٹی کھائی، پھر اسٹیشن کے سامنے والی بازار میں ہی ادھر ادھر پھرنے لگا۔ ایک جگہ سنیما ہاؤس نظر پڑا۔ ایکٹر ایکٹریسوں کے بڑے بڑے بورڈ لگے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس سنیما ہاؤس میں صبح 10 بجے سے لے کر رات کے 12-1 بجے تک مسلسل فلم چلتی ہے۔ اس وقت بھی کوئی فلم چل رہی تھی۔ میں نے ٹکٹ لیا اور سنیما ہاؤس میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں میں بڑے سکون سے وقت گزار سکتا تھا۔ فلم کا نام مجھے یاد نہیں۔ مجھے فلم میں کام کرنے والے ایکٹروں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو وہاں وقت گزارنے آیا تھا۔ آنکھیں اسکرین پر فلم دیکھ رہی تھیں اور دماغ اپنے مشن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اس بات کا بھرپور احساس تھا کہ میں دشمن ملک انڈیا میں ہوں، جو پاکستان کا نمبر 1 دشمن ہے اور جس نے پاکستان کے جائز وجود کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہردہ ضلع ہوشنگ آباد کے جنگلوں میں مجاہد کمانڈو کمال شاہ کے پاس پہنچوں، ان سے فوجی کمانڈو کی ٹریننگ حاصل کروں اور پھر کشمیر میں آ کر حریت پرست کشمیریوں کے شانہ بشانہ بھارتی فوج کے خلاف لڑوں اور کافروں کو مارتا ہوا شہید ہو جاؤں، اور اگر شہادت کا رتبہ حاصل نہ کر سکوں تو جب تک مقبوضہ کشمیر بھارتی ظلم و استبداد کے شکنجے سے آزاد نہیں ہو جاتا اس وقت تک کافروں سے جنگ کرتا رہوں، اور جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے تو واپس پاکستان جا کر اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھوں اور پھر بلند آواز میں کہوں، میاں جی کشمیر آزاد ہو گیا ہے، میں نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا اور فلم ختم ہو گئی۔ میں یہی سمجھا کہ فلم ختم ہو گئی ہے مگر معلوم ہوا کہ انٹرول ہوا ہے۔ پہلے سوچا کہ اندر سنیما ہال میں ہی بیٹھا رہوں، پھر خیال آیا کہ باہر نکل کر چائے پینی چاہیے، حالانکہ مجھے چائے کی طلب کبھی نہیں ہوئی تھی، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، میں بھی کسی غیبی طاقت کے اشارے سے سنیما ہال کے باہر آ گیا۔ باہر دن کی روشنی تھی۔ ابھی کتنا دن باقی تھا؟ مجھے شام کے 5:30 بجانے تھے، کیونکہ جالندھر سے دلی جانے والی گاڑی شام کے 6 بجے چلتی تھی۔ سنیما کے احاطے کے اندر ہی ایک طرف دیوار کے ساتھ چائے پان سگریٹ کی دکانیں تھیں،
मैं एक दुकान के पास खड़े होकर चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद मैंने जेब से पैसे निकाल कर चाय वाले को दिए और 5 सिगरेट के खोखे की तरफ बढ़ा। मैं सिगरेट का आदी नहीं हूँ, मगर कभी कभी चाय पीने के बाद सिगरेट पीने को जी चाहता है। मैंने 5 सिगरेट के खोखे की तरफ कदम उठाया ही था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने पलट कर देखा, मेरे सामने एक कांस्टेबल खड़ा था। उसके साथ एक सिविलियन कपड़ों वाला आदमी भी मौजूद था, जो सिख नहीं था, यकीनन हिंदू होगा और खुफिया पुलिस का आदमी ही हो सकता था। एक लम्हे के लिए मैं कांप उठा, मगर फौरन मैंने अपने आप को संभाला और बड़े एतमाद से पूछा, क्या बात है? सिख कांस्टेबल और खुफिया पुलिस वाला दोनों मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे और उसकी आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। सिख कांस्टेबल ने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, कौन हो भाई तुम? मैंने यूं ही कह दिया, भगवान का बनाया हुआ आदमी हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हिंदू खुफिया पुलिस वाले ने मेरी गर्दन पर हाथ रखकर जोर से दबाते हुए पूछा, अमृतसर क्या लेने गए थे? सिख कांस्टेबल ने मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ खींचा और गाली देकर कहा, हमारे साथ थाने चलो, सब पता चल जाएगा तुम पाकिस्तान से यहाँ किस लिए आए हो। उसने मुझे आगे को धिक्का दिया। बस यही सिख कांस्टेबल की गलती थी और वहीं मैंने पलक झपकते ही अक्ल से काम लिया। जैसे ही धिक्का खाकर मैं उससे 2 कदम आगे लड़खड़ाया, वहीं से सीधा होकर बिजली की तरह इतनी जोर से और इतनी तेजी से भागा कि मुझे खुद न पता चल सका कि मैं कब सिनेमा हॉल के अहाते से निकलकर बाजार में आया और बाजार में जारी ट्रैफिक से बचता बचाता उसी तरह दौड़ता कब दूसरे बाजार में पहुंच गया। मेरे पीछे कांस्टेबल और उसके साथी के भागने और शोर मचाने की आवाजें आ रही थीं, मगर ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल था। खुदा जाने उसी वक्त मेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि मैं इतनी तेज रफ्तारी से भागता चला जा रहा था। जिस किसी के पास से गुजरता अपने आप को बचाने के लिए परे हो जाता और मुझे रास्ता दे देता और मैं उसे हैरान परेशान छोड़कर आगे निकल जाता। मगर मुझे अपने पीछे लोगों के भागने दौड़ने की आवाजें अभी तक आ रही थीं। ये आवाजें मेरा पीछा कर रही थीं, जिसका मतलब ये था कि पुलिस मेरा ताक़ुब कर रही है। मैं दौड़ते दौड़ते हाँफने लगा था। मुझे महसूस होने लगा था कि मैं ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकूंगा। अचानक मेरे सामने रेलवे फाटक आ गया और फाटक बंद था। ट्रैफिक रुकी हुई थी। मैंने बाएं जानिब एक निगाह डाली तो एक रेलगाड़ी को छक छक करते आते देखा। मैं इस कदर घबराया हुआ था कि मुझे इतना भी होश न रहा कि मैं रेल के नीचे आ सकता हूँ। मैंने दौड़कर रेलवे लाइन पार कर ली। ऐन उसी लम्हे ट्रेन सीटी पर सीटी बजाती शोर मचाती मेरे पीछे से गुजर गई। उस ट्रेन ने मेरे और पुलिस के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। ट्रेन भी मालगाड़ी थी जो बहुत लंबी थी। मैंने दौड़ना बंद कर दिया और तेज तेज कदम उठाता दूसरे फाटक के पहलू में से निकल गया। कुछ लोगों ने मुझे आवाज भी दी कि पागल हो तुम। रेलवे फाटक की दूसरी तरफ भी कुछ गाड़ियां, तांगे और रिक्शे खड़े थे। मालगाड़ी सुस्त रफ्तार के साथ खड़खड़ाती अभी तक गुजर रही थी। मैं पीछे देखे बगैर सामने मुंह किए जा रहा था। कोई 60-70 गज के फासले पर सड़क की जानिब दरख्त के नीचे एक लारी खड़ी थी। लारी मुसाफिरों से भरी हुई थी। एक लड़का लारी के पीछे दरवाजे के पास खड़ा आवाजें दे रहा था। एक सवारी लुधियाना। मुझे मालूम था कि लुधियाना जालंधर के बाद दूसरा बड़ा शहर है और ये दिल्ली की तरफ जाते हुए ही आता है। मैं दौड़कर बस में सवार हो गया। मेरे बैठते ही बस चल पड़ी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। एक बार फिर खतरा टल गया था। बस जीटी रोड पर दौड़ती चली जा रही थी। हिंदू सिख सवारियां लदी हुई थीं। औरतें भी बच्चों को लेकर बैठी हुई थीं। रास्ते में सड़क के किनारे कई छोटे छोटे गांव आए और गुजर गए। एक छोटा सा गांव आया, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा। यहाँ बस कुछ देर के लिए रुकी और फिर आगे रवाना हो गई। किसी जगह बस रुकती तो मैं गौर से बाहर का जायजा लेता। मैंने एक सवारी से पूछा कि लुधियाना कितनी दूर है। वो कोई हिंदू था। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और पूछा, तुम पहली बार लुधियाना जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं, पहले भी 1-2 बार गया हूँ, मगर रेलगाड़ी से गया हूँ। वो हिंदू थोड़ी देर मुझे घूरने के बाद बाहर देखने लगा। शाम का धुंधलका खेतों और आसमान को अपनी लपेट में लेने लगा। एक बड़ी नहर आई। बस उसके पुल पर से गुजरकर थोड़ी दूर जाकर बस की रफ्तार हल्की हो गई। फिर वो सड़क के किनारे पर होकर रुक गई। किसी ने ड्राइवर से पंजाबी में पूछा कि क्या हो गया है। ड्राइवर ने कहा, पता कराते हैं, सारी गाड़ियां खड़ी हैं। मुझे खतरे की बू महसूस होने लगी। मैंने खिड़की में से गर्दन बाहर निकाल कर देखा। दूर तक लारियों और बसों की कतार लगी हुई थी। ड्राइवर ने क्लीनर से कहा, जाओ पता कर की गाले। क्लीनर भी सिख था और वो दौड़ता हुआ आगे गया। सवारियां आपस में बातें करने लगी। शायद आगे कोई पुल टूट गया है। किसी ने कहा, कोई टक्कर हो गई होगी। इतने में वो मुझे वापस आता नजर आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, सरदार आगे पुलिस चेकिंग कर रही है। मेरा दिल जोर से धड़का। ड्राइवर ने गाली देकर पूछा कि किस चीज की चेकिंग कर रही है। क्लीनर बोला, कहते हैं कोई पाकिस्तानी जासूस भाग गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी अंदर से क्या हालत हो गई होगी। बज़ाहिर मैं बड़े इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठा रहा और अपने चेहरे से बिल्कुल जाहिर न होने दिया कि मेरे अंदर क्या तूफान मचा हुआ है। अब मुझे वहां से भागना था।
एकदम उठकर भागने से लोगों को मुझ पर शक हो सकता था और वो मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर सकते थे। मैं बज़ाहिर बड़े सुकून के साथ बैठा रहा, फिर जेब में हाथ डालकर उसे यूं ही टटोला और साथ वाली सवारी से पूछा, आपके पास माचिस होगी? सवारी ने नफी में सर हिलाया तो मैं ये कहकर नीचे उतर गया, कहीं से माचिस तलाश करके लाता हूँ, सिगरेट पीने को जी चाहता है। मैं बस से उतरकर 2 कदम चलकर आगे गया, फिर रुककर ऐसे देखने लगा जैसे मुझे किसी पान सिगरेट के खोखे की तलाश हो। उसके बाद मैं टहलता हुआ अगली लारी के पास चला गया, वहां से टहलता हुआ दूसरी और फिर तीसरी के पास। कुछ सवारियां सड़क पर उतर आई थीं और पुलिस वालों को बुरा भला कह रही थीं। यूं ही जहां चाहते हैं गाड़ी खड़ी करवा कर चेकिंग कर लेते हैं। मैं सड़क पार करके दूसरी जानिब एक दरख्त था, उसके नीचे आ गया। सड़क की दूसरी तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं, उनके पीछे खेत थे जो शाम की तेजी से फैलते धुंधलके में गुम हो रहे थे। मैं टहलता टहलता झाड़ियों के पीछे गया, जहां एक जगह छुपकर मैंने लारियों और गाड़ियों की कतार की तरफ देखा। कोई मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं था। मैं दौड़कर खेतों में घुस गया और जितनी तेज चल सकता था चलने लगा। दौड़ना मेरे लिए खतरनाक हो सकता था क्योंकि खेतों की कटाई हो चुकी थी और वहां मुझे कुछ किसान भी नजर आ रहे थे जो कटी हुई फसल एक तरफ रख रहे थे। मैं उनसे दूर रहकर आगे निकल गया। मैं जीटी रोड पर सीधी समत जाने की बजाय बाएं जानिब मगरिब की तरफ हो गया ताकि पुलिस से बच सकूं। हर लम्हे गहरा होता हुआ अंधेरा मेरी मदद कर रहा था। जब मैं कुछ दूर निकल गया तो मैं दौड़ने लगा। मैं चेकिंग करती पुलिस की पहुंच से जितनी दूर निकल सकता था निकल चुका था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि कमबख्त अभी से पुलिस ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। इससे बेहतर तो था कि मैं सीज फायर लाइन उबूर करके सीधा मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो जाता और मुजाहिदों के साथ मिल जाता। मगर मेरे वालिद साहब को मालूम था कि कश्मीर में मुजाहिदीन का सामना भारत की तरबियत याफ्ता फौज से है, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत फौजी तरबियत हासिल करनी चाहिए। चुनाचे उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि मैं कमाल शाह नामी तरबियत याफ्ता फौजी कमांडो के पास जाकर कमांडो की बाकायदा तरबियत हासिल करूं और उसके बाद कश्मीर में शामिल होकर इंडियन फौज के खिलाफ लड़ूं। मेरी भी अब यही ख्वाहिश थी। मुझे राइफल चलानी भी नहीं आती थी और कश्मीर के महाज पर स्टेन गन्नों और मशीन गन्नों के साथ लड़ाई लड़ी जा रही थी। मुझे हैंड ग्रेनेड का भी पता नहीं था कि उसका पिन कैसे खींचते हैं और उसे कितनी देर तक अपने हाथ में रखकर दुश्मन पर फेंकना होता है। मेरे लिए फौजी कमांडो की ट्रेनिंग बड़ी जरूरी थी। मैं फौजी कमांडो बनकर कश्मीर के महाज पर लड़ने और दुश्मन के ठिकानों पर शबखून मारकर उसे बर्बाद करने के लिए बेताब था। लेकिन भारतीय पुलिस मेरे रास्ते में शदीद रुकावट बन गई थी। बल्कि इस बात का वाज़ेह खतरा मौजूद था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी जहाद में शामिल होकर काफिरों से जंग की आरजू हमेशा के लिए खाक में मिल सकती है। इन ख्यालात में डूबा हुआ मैं खेतों से बाहर निकलकर एक छोटी सी नदी के किनारे किनारे चलता रहा। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ। चलते चलते मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां बेशुमार दरख्त पास पास उगे हुए थे। मैंने एक दरख्त से टेक लगा दी। सोचा इसी तरह बैठे लेटे जितनी रात बाकी है गुजार दूं। मैंने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। फजा में जली हुई लकड़ियों की बू सी आ रही थी। मैंने यही ख्याल किया कि यहाँ करीब ही गाँव है, किसी ने तंदूर जलाकर बुझा दिया होगा या लकड़ियों का अलाव रोशन किया होगा। मैं सिमट समटा कर दरख्त से टेक लगाकर आंखें बंद किए नीम दराज था और सिवाय नींद के और किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। मुझ पर कुछ देर हल्की गुनूदगी तारी हो गई। मैं नींद की आगोश में ही था कि किसी चींटी ने मुझे काटा और मैं एक झटके के साथ उठ बैठा। मैंने दोबारा आंखें बंद की तो मुझे किसी के आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आवाज आई। मैंने आंखें खोली और कान उस पर लगा दिए। साथ ही रात के अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा। आवाज किसी औरत की थी। वो रुक रुक कर बोल रही थी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी से बातें कर रही है, मगर जिससे वो बातें कर रही थी उसकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज रुक गई। 5-10 सेकंड के बाद औरत की आवाज फिर से आने लगी। मेरे सामने 10-12 कदमों के फासले पर सरकंडों की झाड़ियां थी। आवाज उन सरकंडों के पीछे से आ रही थी। मैं उस तरफ टिकटिकी बांधे देख रहा था। अचानक सरकंडों के पीछे हल्की हल्की रोशनी नजर आने लगी। मैं आहिस्ता से उठा और झुक कर चलता हुआ सरकंडों की तरफ बढ़ा। मैं मालूम करना चाहता था कि ये औरत कौन है। मैं सरकंडों के पास बैठ गया और बड़ी एहतियात से 2-4 सरकंडों को हाथों से एक तरफ हटाकर दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ मुझे छोटा सा चबूतरा नजर आया जो जमीन से 1-2 फुट ऊंचा था। उस चबूतरे के एक जानिब मिट्टी का दिया जल रहा था। उस दिए की रोशनी में मैंने एक औरत को देखा जो दोनों हाथ जोड़कर कुछ पढ़ते हुए चबूतरे के चक्कर लगा रही थी। मुझे लगा कि ये जरूर कोई चुड़ैल या भूत परीत है, मगर औरत का जिस्म और आवाज चुड़ैलों की सी नहीं थी। मैं ये सोचकर वहीं छुप कर बैठा रहा कि मालूम करना चाहिए कि ये औरत यहाँ क्या करने आई है। औरत चबूतरे के गिर्द कुछ चक्कर लगाने के बाद रुक गई। वो मुझसे बमुश्किल 5-6 कदमों के फासले पर थी। वो जलते हुए चिराग के पास बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। उसने पढ़ना बंद कर दिया। 3 बार हाथ बांध कर चबूतरे की तरफ झुकी और फिर उसने अपना लिबास उतार दिया।
मुझ पर पहला असर हुआ कि मैंने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फिर ख्याल आया कि पता तो लगे कि ये औरत आधी रात को इस वीरान जगह पर चिराग लेकर क्या करने आई है। मैंने सर घुमाकर औरत को देखा। उस वक्त वो एक छड़ी से चबूतरे की जली बुझी लौ को कुरेद रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया कहीं ये वाकई चुड़ैल ना हो, मगर अब मैं इस मुअम्मे को हल करना चाहता था, वहां से डर कर भागना नहीं चाहता था। औरत ने छड़ी से लकड़ियों की राख को कुरेदते कुरेदते उसमें से गोल सी चीज लकड़ी से निकालकर उसको चिराग की लौ के करीब लाकर गौर से देखा और धीमी आवाज में कुछ पढ़ने लगी। मैं ये देखकर वाकई डर गया कि ये एक जली हुई इंसानी खोपड़ी थी। औरत ने खोपड़ी को हाथ लगाया। खोपड़ी गर्म थी। उसने खोपड़ी को जमीन पर रख दिया। वो अपने साथ पानी का डिब्बा भी भर कर लाई थी। उसने कुछ मंत्र पढ़े, खोपड़ी पर डिब्बे में से 3-4 बार पानी डाला। जब खोपड़ी ठंडी हो गई तो उसे गोद में लेकर बैठ गई और यूं आगे पीछे हिलते हुए कुछ पढ़ने लगी जैसे बच्चे को लोरियां दे रही हो। मैं अब सारी बात समझ गया था। ये मरघट या शमशान भूमि थी जहां हिंदू सिख अपने मुर्दों को जलाते थे। ये औरत वहां रात के वक्त चिल्ला काटने आई थी। जाहिर है वो किसी करीबी गांव की औरत थी। मेरे दिमाग में एक स्कीम आई। मैं सरकंडों में से निकलकर अचानक उसके सामने आ गया। मुझे देखकर उस औरत की चीख निकल गई। उसने जल्दी से खोपड़ी फेंकी और जमीन पर पड़ी हुई कमीज उठाकर अपने आगे कर ली। मैंने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा मगर जल्दी से कपड़े पहन ले। औरत ने जल्दी से कपड़े पहन लिए। वो हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान के लिए किसी को न बताना कि मैं यहाँ आई थी। मैंने कहा, तू यहाँ ये सब कुछ क्या कर रही थी और ये खोपड़ी किसकी है? औरत ने बताया कि वो एक हिंदू है। 5 साल हुए उसकी शादी हो गई मगर औलाद नहीं हुई। किसी साधु ने उसे बताया था कि अगर वो किसी कंवारी लड़की के जले हुए मुर्दे की खोपड़ी आधी रात को अपनी गोद में लेकर एक खास मंत्र का जाप करेगी तो उसकी गोद हरी हो जाएगी। चुनाचे ये औरत जो साथ वाले गांव की थी वहां औलाद के लिए चिल्ला करने आई थी। उसे पता चला था कि शाम को इस गांव की एक कंवारी लड़की मर गई है और उसे जला दिया गया है। औरत मेरी मिन्नत समाजत कर रही थी कि मैं गांव में जाकर किसी के आगे जिक्र न करूं क्योंकि इस तरह उसका चिल्ला भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने उसे कहा, फिक्र न करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं खुद यहाँ परदेसी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। औरत ने पूछा, क्या? मैंने कहा, मुझे ये बताओ कि ये इलाका कौन सा है और लुधियाने को जाने के लिए मुझे किस तरफ जाना है। फिर मैंने उसे बताया कि मेरी बस निकल गई थी और मैं यूं ही खेतों में चलता हुआ रास्ता भूल गया हूँ। औरत ने कहा कि तुम बड़ी दूर निकल आए हो। यहाँ से आगे एक कस्बा चौलियाँ है, वहाँ से कस्बा ब्यास को जाने वाले यक्के मिल जाते हैं। ब्यास से तुम रेलगाड़ी में बैठकर लुधियाना पहुँच जाना। वो एक बार फिर हाथ जोड़ने लगी, मेरा जिक्र किसी गैर आदमी से भी न करना, नहीं तो मेरा औलाद की खातिर चिल्ला भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ मैं अपने किसी दोस्त से भी इसका जिक्र नहीं करूँगा। मेरी स्कीम यही थी कि इस औरत से किसी ऐसे गांव या कस्बे के बारे में पूछूं जहां से मैं लुधियाना पहुंच सकूं, क्योंकि इस किस्म के चिल्ले घर वालों और गांव से छुपकर राजदारी के साथ किए जाते हैं। इसलिए मुझे यकीन था कि ये मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगी। अगर किसी को बताएगी तो वो सब इससे पूछेंगे कि तुम आधी रात को गांव के बाहर क्या करने गई थी। मैंने औरत से इतना जरूर कहा कि इस किस्म के तवहुमात से कुछ नहीं हुआ करता। घर जाओ और अपने भगवान के आगे प्रार्थना करो, अगर भगवान की मर्जी हुई तो वो तुम्हारी गोद जरूर हरी कर देगा। औरत हैरानी से मेरा मुंह तकने लगी। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे हिंदू नहीं लगते, क्योंकि कोई हिंदू इस किस्म की बात नहीं कर सकता। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मैं हिंदू ही हूँ, बस विलायत का पड़ा हुआ हूँ और इस किस्म के तवहुमात में यकीन नहीं करता। अब तुम वापस अपने घर जाओ। औरत ने चबूतरे पर जलता हुआ चिराग फूंक मारकर बुझा दिया और मेरे करीब होकर पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ जाओगे, मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव जाऊं और तुम्हारा खावंद और गांव वाले मुझे पकड़कर मारना शुरू कर दें। औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी से मुझे महसूस हुआ कि ये औरत ठीक औरत नहीं है। उसका सबूत मुझे फौरन मिल गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि मेरे साथ आ जाओ, गांव के बाहर एक कोठरी है, तुम रात वहां गुजार लेना। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ा लिया और उस औरत से कहा, तुम अपने गाँव जाओ, मैं किसी अगले गाँव में जाकर रात बसर कर लूँगा। ये कहकर मैं वहाँ से चल दिया। मैंने कुछ दूर जाकर वापस मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में मुझे वो औरत नजर आई। वो वापस अपने गांव की तरफ जा रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।